ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 29 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ भारत पर्व। सब तो पहले भारत पर्व 2020। भारत पर्व 2020 इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 26 to 31 जनवरी। 26 तो 36 जनवरी तक की मनाया जाएगा? भारत पर्व मनाया जाएगा। कितने मनाया जाएगा? न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ भारत पर्व मनाया जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ आंध्र प्रदेश ने टॉप ਕੀਤਾ फ्रूट प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। फ्रूट प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੂਮਨ ਵਿਦ ਵੀਲਸ। ਵੂਮਨ ਵਿਦ ਵੀਲਸ ਅ ਯੂਨੀਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ। ਵੂਮਨ ਵਿਦ ਵੀਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੂਮਨ ਵਿਦ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨਸ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੂਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਵੂਮਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਤਰੰਜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਸਤਰੰਜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਲਡ ਇਨ ਸੋਫੀਆ ਬੁਲਗੇਰੀਆ। ਬੁਲਗੇਰੀਆ ਦੇ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 71st ਸਤਰੰਜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਗੇਰੀਆ ਸੋਫੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਕਲੇਵ ਔਨ ਐਮਰਜਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਈ ਵੇਸਟ ਕਲੀਨਿਕ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਈ ਵੇਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੋਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਈ ਵੇਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮਸ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮਸ ਡੇ ਕਿਦਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮਸ ਡੇ। ਬਲੋਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇਮਡ ਵਜਰ। ਵਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੋਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਵਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੋਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? NPCI ਦੁਆਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੰਗਾ ਵੋਲਗਾ ਡਾਇਲੋਗ। ਗੰਗਾ ਵੋਲਗਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵੋਲਗਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵੋਲਗਾ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੋਲਗਾ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ 15 ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ 15 ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮਿਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਲ ਬੋਲਸੈਨੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ
कित्थे है? हरियाणा दे विच। हरियाणा दे विच अंबाला सिटी है, उत्थे जिहड़ा बस स्टैंड है उसका नाम रखा जाएगा सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी के नाम के उत्ते अंबाला सिटी का जिहड़ा बस स्टैंड है उसका नाम रखा जाएगा। नैक्सट है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जिहड़ी कि टैलीकॉम ऑपरेटर है, ये बनी है फर्स्ट टैलीकॉम ऑपरेटर टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ UPI पेमेंट्स। UPI पेमेंट्स प्रोवाइड करवाने वाली फर्स्ट टैलीकॉम ऑपरेटर बने रिलायंस जियो। किहड़ा बने? फर्स्ट टैलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो बने। ठीक है जी। नैक्सट है अपनी अज दी स्टेट। अज दी स्टेट आप डिस्कस करांगे बिहार। बिहार बनाया गया सी 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 ਨੂੰ बनाया गया सी बिहार। चीफ कैपिटल पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ने। फागू चौहान काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है, फागू चौहान लेटेस्ट अपॉइंटेड ने, याद रखने ने। फागू चौहान इत्थे दे गवर्नर ने। 38 डिस्ट्रिक्ट्स ने। लोक सभा सीट्स 40 ने। राज्यसभा सीट्स 16। विधान सभा एंड विधान परिषद बाय कैमरल है। विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान सभा 243 एंड विधान परिषद 75 सीट्स ने। बॉर्डर स्टेट्स ने उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है। बॉर्डर कंट्री है नेपाल। नेपाल के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है बिहार। ठीक है, याद रखना नेपाल के नाल बॉर्डर शेयर कर रहा है बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क काफ़ी एग्जाम के पूछा जा चुका है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कित्थे है? बिहार दे विच है। इस तो इलावा भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन। पहले 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने, ये याद रखने ने, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीमगढ़ और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन ये याद रखनी है। इस तो अलावा कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी कित्थे है? बिहार दे विच है। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी कित्थे है? बिहार दे विच है। महाबोधि टैंपल, इसमें तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। महाबोधि टैंपल बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाबोधि टैंपल कित्थे सिचुएटेड है? बिहार दे विच सिचुएटेड है। ठीक है। ईवन कि पंजाब के काफ़ी जोड़े एग्जाम्स ने उन्होंने भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है। इंडिया के जोड़े सेंटर के एग्जाम होंगे ने उन्होंने पूछा गया। इस तो इलावा पंजाब के एग्जाम के भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। महाबोधि टैंपल बिहार दे विच है। नैक्सट है अज की अपनी फर्स्ट न्यूज़ है पद्म अवार्ड्स रिगार्डिंग कि किन्नी वूमेंस नूं पद्म अवार्ड दिता गया। किन्नी वूमेंस नूं पद्म अवार्ड दिता गया। पद्म अवार्ड दिते गए ने किन्नी वूमेंस नूं? 34। किन्नी वूमेंस नूं? 34। पूरी डिटेल डिस्कस करांगे। पूरी डिटेल है कि पद्म अवार्ड्स कदों बनाए गए सी। ये बनाए गए सी 1954। 1954 नूं बनाए गए सी पद्म अवार्ड्स। हर साल दिते जांदे ने। किहड़े-किहड़े साल छड्ड के इस दे उत्ते भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किहड़े साल दे विच पद्म अवार्ड्स नहीं दिते गए सी। 97 तो लैके 1977 तो लैके 1979 आएगा थे। 1977 तो लैके 1979 एंड 1993 तो लैके 1997। ठीक है। इन्हां सालों दे विच कुछ कारणों करके पद्म अवार्ड नहीं दिते गए सी। 2020 दे विच 141 पद्म अवार्ड दिते गए ने। 141 पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए ने। 141 पद्म अवार्ड्स। ठीक है। पद्म अवार्ड्स दे विच की हुंदा है? 3 तरीके के अवार्ड्स होंगे ने, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जिहड़ा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो की है? भारत रत्न है। ठीक है, याद रखना है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। सैकेंड नंबर पर है पद्म विभूषण, सैकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट पद्म श्री। ये याद रखना है। ठीक है। 7 पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, 16 पद्म भूषण अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं और 118 पद्म श्री अनाउंस किए गए हैं। ठीक है। एक पूरी की पूरी प्रॉपर लिस्ट है जिसके 7 पद्म विभूषण ने, 16 पद्म भूषण ने और 118 पद्म श्री अवार्ड्स ने, जिसके विचों आप मेन याद करांगे। ठीक है, अगे याद करांगे। सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट इसके की याद रखना है कि 34 अवार्डीज किन्ने वूमेन ने। ठीक है, वूमेन किन्नियां ने? 34 ने, जिसके विचों टोटल 141 चो 34 वूमेंस ने, 18 फॉरनर्स ने, यानी कि इंडिया के बाहर
ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 18% ਔਰ 12 ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 12% ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਦੇ 7 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ। ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ। ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਇਹ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ। ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਨੇ। MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ। MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ? ਮਨੀਪੁਰ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਅਤੇ UP ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ VSSPAM, VSSPAM ਉਦੂਪੀ, VSSPAM ਉਦੂਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਈਜ਼ਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਔਰ MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ। ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 7 ਦੇ 7 ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ। ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਆਈ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਾਨੂ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਰਟਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਦੂਪੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ। ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 16 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ PV ਸਿੰਧੂ। PV ਸਿੰਧੂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਗੋਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਟਸ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਅਵਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 16 ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 118 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਲਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਜੋਹਰ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਕੀ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 5 ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ 7 ਦੇ 7 ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਉਦੂਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਅਵਾਰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ।
जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और उदुपी, इन्हां चारां नूं आफ्टर डैथ यह अवार्ड दिता गया। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना प्रेस्टीजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। प्रेस्टीजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 अनाउंस किया गया है। किन्हां नूं दिता गया फॉर इट्स हिज एक्सैम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा हेल्थ साइंस। आयुर्वेदा हेल्थ साइंस। अच्छा, आप एक डिस्कस किया सी पद्म अवार्ड डिस्कस कर लिया अपने। एक अवार्ड्स अनाउंस होए ने ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स भी अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने आप डिस्कस करांगे किसी होर दिन, कल डिस्कस कर लाँगे। ग्रैमी अवार्ड्स आप इन्हों कल डिस्कस कर लेंगे, एक पूरी लिस्ट ले आवांगे ग्रैमी अवार्ड्स की। और पद्म अवार्ड्स आप अज डिस्कस कर लेने। ठीक है जी, सैशन में लाइक तो शेयर कर दो। आप चलते नैक्सट क्वेश्चन वाल। प्रेस्टीजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड एक इन्होंने दिता गया बीरेंद्र सिंह योगी। बीरेंद्र सिंह योगी नूं दिता गया प्रेस्टीजियस चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किन्नू दिता गया? बीरेंद्र सिंह योगी नूं। बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर ने। आयुष मिनिस्टर ने श्रीपद येसो नायक नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस तो इलावा ये MOS ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किस चीज़ के डिफेंस के? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने श्रीपद येसो नायक। अच्छा, जिली दल बेहरा। जिली दल बेहरा नूं अवार्ड दिता गया सी। किहड़ा अवार्ड दिता गया सी इन्हां नूं? एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड दिता गया सी 2019। एकलव्य अवार्ड 2019 दिता गया सी। ये बिलोंग करते हैं उड़ीसा तो। ये वेट लिफ्टर ने, स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं उड़ीसा वेट लिफ्टर। डेविड एटनबरो इन्होंने दिता गया सी गांधी पीस प्राइज़। गांधी पीस प्राइज़ दिता गया सी डेविड एटनबरो। इलहम तोहती। इलहम तोहती नूं दिता गया सी सैखरो प्राइज़। सैखरो प्राइज़ दिता गया सी इलहम तोहती नूं। ठीक है, इलहम तोहती नूं किहड़ा प्राइज़ दिता गया सी? सैखरो प्राइज़। ये याद रखना है। नैक्सट है विच स्टेट बिकम्स 4th स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास किया उन्होंने। कि स्टेट गवर्नमेंट यह जी 4th स्टेट बनी है? इसका करैक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। इसका करैक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। सब तो पहले की किया गया? सब तो फर्स्ट स्टेट बनी केरला। केरला ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया सब तो पहले केरला ने। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड नंबर पर पंजाब ने किया और थर्ड नंबर पर राजस्थान ने। फर्स्ट नंबर केरला, सैकेंड नंबर पंजाब, थर्ड नंबर राजस्थान और फोर्थ स्टेट बन गई अपनी वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये याद रखने कि स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। ये चारों स्टेट्स जिसे BJP गवर्नमेंट मेजोरिटी के नहीं है। BJP मेजोरिटी के नहीं है चारों स्टेट के। ठीक है, याद रखनी है। ई सिगरेट्स में बैन करने वाली स्टेट पुलिस बनी सी हरियाणा। हरियाणा स्टेट पुलिस ने ई सिगरेट्स में बैन किया सी। इस तो इलावा याद रखना हरियाणा के गुड़गांव के ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया सी। लॉन्च किया सी किन्ना द्वारा? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा। मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसनूं इनोग्रेट किया गया सी। ये याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट है इन विच सिटी इनोवेशन फैसटिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड। इनोवेशन फैसटिवल केड़ी सिटी दे विच ऑर्गेनाइज किया गया? केड़ी सिटी दे विच किया गया? ईटानगर। इसका करैक्ट आंसर 5th ऑप्शन ईटानगर। ईटानगर कित्थे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के विच है ईटानगर। ठीक है, इस तो इलावा याद रखना अरुणाचल प्रदेश के विच किया गया सी। अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट के विच। अरुणाचल प्रदेश लोहित डिस्ट्रिक्ट परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला हैल्ड किया गया सी अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट के विच। बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। बाकी ऑप्शन के उखरूल। उखरूल कित्थे है? मणिपुर। उखरूल मणिपुर के विच है तो इत्थे किया गया लिली फैसटिवल। लिली फैसटिवल हैल्ड किया गया सी उखरूल मणिपुर के विच। शिलोंग। शिलोंग कित्थे है? मेघालय। मेघालय के शिलोंग के विच हैल्ड किया गया सी चैरी ब्लूजम फैसटिवल। चैरी ब्लूजम फैसटिवल। गवालियर। गवालियर कित्थे? MP के विच है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ग्वालियर। इत्थे हैल्ड किया गया सी तानसेन फैसटिवल। तानसेन समारोह। तानसेन समारोह ग्वालियर के विच हैल्ड किया गया सी।
अहमदाबाद है गुजरात दे विच। अहमदाबाद कित्थे है? गुजरात दे विच है। तो इत्थे की कीता गया सी 31 इंटरनेशनल काइट फैसटिवल, 31 इंटरनेशनल काइट फैसटिवल हैल्ड किया गया सी अहमदाबाद दे विच। ठीक है जी। अहमदाबाद कित्थे? साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे है अहमदाबाद, याद रखना। नेक्स्ट है कोब ब्रायंट रिसेंटली पास्ड अवे एट 41 इन ए हैलीकॉप्टर क्रैश। कोब ब्रायंट 41 एज दे सीगे, ठीक है। एक हैलीकॉप्टर क्रैश दे विच इन्हां दी डैथ हो गई है। यह किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते सी? बास्केटबॉल। इसका करैक्ट आंसर है सैकेंड ऑप्शन, बास्केटबॉल तो बिलोंग करते सी। इन्हां नूं लैजेंड ऑफ बास्केटबॉल कहा जाता सी, ठीक है। ये अपनी डॉटर दे नाल सफ़र करते सी, जिस दे विच इन्हां दी क्रैश दे विच डैथ हो गई है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, स्पोर्ट्स तो याद आया खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स कित्थे हैल्ड कीती गई सी? गुवाहाटी असम दे विच। गुवाहाटी असम दे विच हैल्ड कीती गई सी खेलो इंडिया गेम्स। इसनूं टॉप किसने किया सी? टॉप किया सी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने टॉप किया सी। किन्ने मैडल सी? 256 मैडल्स, 256 टोटल मैडल्स जिते सी, जिस दे विचों 78 गोल्ड मैडल्स, 78 गोल्ड मैडल सीगे, 77 सिल्वर मैडल सीगे, और किन्ने बच गए इस दे विचों 101 सिल्वर मैडल सीगे, ठीक है। महाराष्ट्र द्वारा टॉप किया गया सी 256 मैडल्स, 78, 77 और 101, ठीक है, ये याद रखना है। इस तो अलावा सैकेंड प्लेस से रहा सी हरियाणा सैकेंड प्लेस से रहा सी, टोटल 200 मैडल सीगे, जिस दे विचों 68 गोल्ड सीगे। थर्ड प्लेस से रहा सी दिल्ली के टोटल मैडल सीगे 122 गोल्ड मैडल सीगे, और 122 टोटल मैडल सीगे और 39 गोल्ड मैडल सीगे, ठीक है, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च शिव भोजन स्कीम। शिव भोजन स्कीम लॉन्च की गई है, किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया? शिव भोजन स्कीम ये किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र द्वारा। करैक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन महाराष्ट्र द्वारा शिव भोजन स्कीम नूं लॉन्च किया गया, जिस दे नाल जिहड़े गरीब लोग ने वो सिर्फ 10 रुपए दे विच एक अच्छा और हैल्दी खाना खा सकन, ठीक है। सिर्फ 10 रुपए दे विच खाना दिता जाएगा और काफ़ी अच्छा और हैल्दी खाना दिता जाएगा शिव भोजन स्कीम के अंडर। इसनूं लॉन्च किया गया महाराष्ट्र दे विच। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। गवर्नर याद रखने ने भगत सिंह कोश्यारी इत्थे दे गवर्नर ने, ठीक है जी। गुजरात वहीली डिक्री योजना कित्थे दी है? गुजरात दी है, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। वहीली डिक्री योजना कित्थे दी है? गुजरात दी है। राजस्थान बारे याद रखना है, राजस्थान के जयपुर लिटरेचर फैसटिवल स्टार्ट किया गया राजस्थान के जयपुर दे विच, ठीक है। अच्छा, गुजरात दे विच एक फैसटिवल स्टार्ट किया गया, किहड़ा फैसटिवल स्टार्ट किया गया? उड़ीसा के नाम के उत्ते, एक फैसटिवल स्टार्ट किया गया गुजरात दे विच। उसका नाम की है? उसका नाम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में भी दसना है, ठीक है, कि गुजरात दे विच उड़ीसा नाम के उत्ते किहड़ा फैसटिवल स्टार्ट किया गया। नैक्सट है असम के बारे याद रखना है, अरुंधति गोल्ड स्कीम। इस तो अलावा शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन कित्थे दी है? असम दी है। इस तो अलावा अनोहर अपोगर यह जी कुछ स्कीम है, यह भी कित्थे दी है? असम दी। KNN बैम्बू टैक्नोलॉजी पार्क, इंडिया का फर्स्ट KNN बैम्बू टैक्नोलॉजी पार्क कित्थे बनाया गया? असम दे विच बनाया गया, असम के बर्नीहाट दे विच यह बनाया गया। नैक्सट याद रखना है उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग याद रखना है। उत्तर प्रदेश एक स्कीम लॉन्च की गई है, कल ही आप डिस्कस की है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना कित्थे दी है? उत्तर प्रदेश दी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर सीगे सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल याद रखने ने, ठीक है।
नैक्सट है अ हिंदी नॉवल बलवा, बलवा नाम का एक हिंदी नॉवल है, रिलीज़ किया जाएगा किन्ने द्वारा? बलवा नाम का एक नॉवल रिलीज़ किया जाएगा किन्ना द्वारा किया जाएगा? मुख्तार अब्बास नकवी। थर्ड ऑप्शन मुख्तार अब्बास नकवी, यानी कि बुक है बलवा, ये रिलीज़ की जाएगी मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। मुख्तार अब्बास नकवी की ने? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा झारखंड, राज्यसभा एमपी ने झारखंड तो, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर राज्यसभा एमपी झारखंड तो मुख्तार अब्बास नकवी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर नवे अपॉइंट किए गए हैं हेमंत सोरेन, याद रखने ने हेमंत सोरेन किनवें नंबर के ने? 11वें नंबर के, 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर ने झारखंड के हेमंत सोरेन। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशांक एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल निशांक। हरिद्वार उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा एमपी ने रमेश पोखरियाल निशांक। अमित शाह, अमित शाह ने एक बुक रिलीज़ की थी कर्म योद्धा ग्रंथ, कर्म योद्धा ग्रंथ किन्ना दे उत्ते? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्ते, कर्म योद्धा ग्रंथ नाम की बुक रिलीज़ की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्ते अमित शाह ने। एम वेंकैया नायडू लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक रिलीज़ की थी एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। इस तो इलावा बुक रिलीज़ की थी टर्बुलेंस एंड ट्रंप, टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदी ईयर्स, यह बुक रिलीज़ की थी एम वेंकैया नायडू ने। किस दे उत्ते सी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्ते, ये याद रखनी है। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सीगे, इन्होंने बुक रिलीज़ की थी ह्यूमन डिगनिटी, ह्यूमन डिगनिटी नाम की बुक रिलीज़ की थी जिसके राइटर सीगे अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार इज ए राइटर से, ठीक है, ये याद रखने ने। कौन सी इज ए राइटर इस बुक दे? अश्वनी कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ सिलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ਲਈ किस ਨੂੰ सिलेक्ट किया गया, यानी कि यह अवार्ड किन्हां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? इसका मेनली करैक्ट आंसर आएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, यानी कि कुमार मुनन सिंह और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड, इन्होंने दोनों ਨੂੰ यह अवार्ड ਦਿੱਤਾ जाएगा। अगर आप देखिए परसन किहड़े परसन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ गया? कुमार मुनन सिंह, और किहड़े डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ गया? डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड, ठीक है। इन्होंने मेनली डिजास्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, डिजास्टर ਨੂੰ रोकਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ डिजास्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨਵੀਂ? 123rd ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਿਸ ਦਿਨ? 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 123rd ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। इस तो इलावा याद रखना NDTV, NDTV ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NDTV ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡ, याद रखना इंटरनेशनल प्रैस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। इस तो इलावा रवीश कुमार NDTV ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ, ਰਮਨ ਮੈਗਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ठीक है। ਇਹ ਦੋਨੋਂ याद रखने ने। तो इस तो इलावा याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी 123rd एडिशन याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। 123rd एडिशन सीगा सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी का 23 जनवरी को, ठीक है जी। नैक्सट है इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फैब लैब, इंडिया की फर्स्ट सुपर फैब लैब इनोग्रेट की गई है किहड़ी स्टेट दे विच? किहड़ी स्टेट दे विच की गई है? केरला दे विच। इसका करैक्ट आंसर है केरला। अच्छा, फैब लैब हुंदी की है? फैब लैब एक ऐसी प्लेस हुंदी है जिस DNA मॉड्यूल के उत्ते रिसर्च की जाती है, ठीक है। इसनूं इंडिया ने MIT एक कंपनी है कित्थे दी? USA दी एक कंपनी है, उस दे नाल कोलैबोरेट करके फैब लैब नूं इंडिया दे विच बनाया गया, यानी कि इंडिया की फर्स्ट फैब लैब है और कित्थे बनाई गई है? केरला दे विच। इंडिया की फर्स्ट फैब लैब किहड़ी स्टेट दे विच बनाई गई है? केरला दे विच। किस द्वारा बनाई गई है? USA द्वारा। USA की किहड़ी कंपनी द्वारा बनाई गई है? MIT कंपनी, ठीक है। ये तीनों चीज़ां याद रखनियां ने। अंडर विच मिशन? एक मिशन के अंडर बनाई गई ने, उसका नाम याद रखना है के सम,
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है केरला स्टार्टअप मिशन। केरला स्टार्टअप मिशन, केरला स्टार्टअप मिशन इज दी फुल फॉर्म है KSUM। ठीक है, याद रखना है। इस मिशन के अंडर बनाई गई है यह फैब लैब। किस चीज़ के रिगार्डिंग है? DNA मॉड्यूल की रिसर्च के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लें। बाकी ऑप्शन के तमिलनाडु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फर्स्ट स्टेट बनी है तमिलनाडु। इस तो अलावा तमिलनाडु की एक प्लेस है तुथुकुड़ी तमिलनाडु के विच है। इत्थे इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया सैकेंड लॉन्च पैड बनाया गया तुथुकुड़ी तमिलनाडु के विच। ठीक है जी। केरला ने किहड़े अच्छा तमिलनाडु ने एक इंडैक्स में टॉप किया सी, तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में भी दसना है। तमिलनाडु ने एक इंडैक्स में टॉप किया सी, किहड़ा इंडैक्स सी ओह उसका तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में भी दसना है। केरला एक किस नाल तमिलनाडु का जिहड़ा इंडैक्स किया सीगा एक किस चीज़ नाल रिलेटेड है? यह रिलेटेड है गुड गवर्नेंस के नाल। चलो मैंने दस दिता, गुड गवर्नेंस इंडैक्स में टॉप किया सी तमिलनाडु ने। केरला ने टॉप किया सी एजुकेशन इंडैक्स, हैल्थ इंडैक्स, इस तो इलावा SDG इंडैक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स में टॉप किया सी केरला ने। आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग स्कीम्स आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक नवी चीज़ दस दें आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग। आंध्र प्रदेश एक यह जी स्टेट है जिसने दो चीज़ां दसियां ने, दो इंपोर्टेंट चीज़ां दस रहे हैं। आंध्र प्रदेश यह जी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स होणगियां। इन्होंने डिकलेयर किया है, एक लॉ पास किया इन्होंने कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स होणगियां, जिस दे विचों अमरावती भी होएगी, विशाखापट्टनम भी होएगी। चलो ये तो बाद की गल है जो ये बन जाएगियां। पर इस टाइम आंध्र प्रदेश की कैपिटल की होएगी? हैदराबाद। याद रखनी, इस टाइम आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिर्फ हैदराबाद ही होएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों शेयर कर रहे हैं हैदराबाद नूं एज ए कैपिटल। 25th हाई कोर्ट कित्थे बनाई गई सी? आंध्र प्रदेश के विच। इस तो इलावा आंध्र प्रदेश एक बाई कैमरल स्टेट है। बाई कैमरल यानी कि विधान परिषद और विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दोनों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असैंबली। ठीक है, तो इन्होंने लॉ पास किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नूं यह खत्म कर देंगे। आंध्र प्रदेश के विच लेजिस्लेटिव काउंसिल नूं खत्म किया जाएगा, इसके लिए लॉ पास किया गया। ठीक है, हजे होया नहीं है, जो एक प्रॉपर तरीके ना हो जाएगा उस तो बाद आप न्यूज़ नूं डिस्कस करांगे। ठीक है जी। नैक्सट है तेलंगाना बारे याद रखना है। तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नूं दिता गया सी यूनीसेफ द्वारा अवार्ड दिता गया सी स्वच्छता स्कीम के अंडर अवार्ड दिता गया सी स्वच्छ भारत अभियान के अंडर। किस चीज़ के लिए? वाटर सैनीटेशन एंड हाइजीन दे विच अवार्ड दिता गया सी तेलंगाना के कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नूं। कर्नाटका ने टॉप किया सी सरल इंडैक्स में टॉप किया सी कर्नाटका ने। इस तो इलावा नेशनल इनोवेशन इंडैक्स में भी टॉप किया सी कर्नाटका ने। अच्छा, यूनीसेफ की गल आई है, यूनीसेफ ने एक अवार्ड दिता सी, एक होर अवार्ड दिता सी प्रियंका चोपड़ा नूं, डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिता सी यूनीसेफ द्वारा प्रियंका चोपड़ा नूं। यह भी याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट है विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सैसफुल लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गजनवी नाम की एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जिहड़ी कि सरफेस टू सरफेस है। याद रखनी है, सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल गजनवी किस द्वारा लॉन्च की गई है? पाकिस्तान द्वारा यह मिसाइल सक्सैसफुली टेस्ट की गई है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने ने। पाकिस्तान का एक टैंपल है पंज तीरथ टैंपल कित्थे है? पेशावर दे विच है। पंज तीरथ टैंपल पेशावर दे विच है। इसनूं नैशनल हैरीटेज डिकलेयर किया गया सी। नैशनल हैरीटेज डिकलेयर किया पाकिस्तान ने पंज तीरथ टैंपल नूं। इस तो इलावा नैशनल ड्रिंक डिकलेयर किया गन्ने के जूस नूं शुगर केन जूस डिकलेयर किया नैशनल ड्रिंक पाकिस्तान द्वारा। ठीक है, ये दोनों चीज़ां याद रखनियां ने। बाकी ऑप्शन आप डिस्कस कर लेने। बाकी ऑप्शन दे विच श्रीलंका बारे याद रखना है। श्रीलंका कैपिटल जयवर्धेपुरे कोटे श्रीलंका की कैपिटल है।
और करंसी इत्थे रूपी चलती है। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद और करंसी रूपी। इथोपिया इथोपिया कैपिटल इथोपिया की कैपिटल की है अदिस अबादा। अदिस अबादा करंसी इत्थे चलती है बिर। बिर करंसी चलती है अदिस अबादा बिर। सूडान और साउथ सूडान ये दो कंट्रीज़ मैंने जानबूझ के ऑप्शन के रखे ने। ये दो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सूडान और साउथ सूडान ये दो अलग अलग कंट्रीज़ ने जिसके विचों सूडान की कैपिटल है खातरूम। खातरूम खुतरोन ऐसे कुछ कैपिटल है KHURTOUM। ठीक है। और इतने करंसी चलती है पाउंड। सुडानीज पाउंड। सुडानीज पाउंड क्या जाता है मेनली, वैसे पाउंड आप याद रख सकते हैं सुडानीज पाउंड। और साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा और करंसी इतने चलती है साउथ सूडानीज पाउंड। साउथ सूडानीज पाउंड और करंसी कैपिटल है जूबा। ठीक है, ये याद रखनी है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन दे विच आपां ने पद्म अवार्ड डिस्कस किए हैं जिसदे विच पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तीनों अवार्ड डिस्कस किए हैं। इन्हां दे विच पद्म विभूषण काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं। 7 अवार्ड्स ने, ये आप सारी लिस्ट याद रखनी है 7 के 7। ठीक है जी। इस तो अलावा कल आप डिस्कस करेंगे ग्रैमी अवार्ड्स। सैशन को लाइक तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स तक। जिन्ने भी फ्रेंड्स ने तुहाडे जिहड़े भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तक जरूर शेयर करो ताकि वो इन अवार्ड्स को याद कर सकन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।